So we have what is called as an SDLC life cycle models, SDLC life cycle models. Okay, and we have many, we have seen the SDLC. Okay, ये एक फ्रेमवर्क है जो कि डिस्क्राइब करते हैं वो सारी एक्टिविटीज जो कि आप प्रोजेक्ट में, वो सारे स्टेप्स जो हमने कहा, प्लानिंग, एनालिसिस, डिजाइन, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है ना? तो कुल मिला के जो रिक्वायरमेंट्स आपके पास होनी चाहिए, you need to have the requirements, right? And then using those requirements you should be able to tell me, because this is software engineering. You have software engineering कब आपकी थी? अब पिछले पिछले में या इसी सेमेस्टर में? इसी सेमेस्टर में। You have software engineering this semester? Yes, तो फिर हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? ये तो फिर आपने पढ़ा होगा ना? Yes sir. मुझे पता था आपको ये था ही नहीं, ये तो पढ़ना ही नहीं, तो स्किप करना था ये टॉपिक। Anyways, I am saying we have the SDLC where we see planning, then we see analysis, then we see what? Design and implementation, and these two gives us the requirements, and then we got a design implementation. So this SDLC model is the basic model, but we have now the typical models or paradigms. We call them as a paradigms or protocols, which are modification of this SDLC model as an alternative to this LDLC model, which gives us better understanding of project, but better system and design that helps us to design system better, right? And the first one in it is the waterfall model. Waterfall model is, if I go here to see it here on this side, this is my waterfall model. If you could see here the diagram, we can understand by the diagram firstly. Okay, look at the diagram here. Because it's a waterfall. Okay, waterfall means water falls from the top to the bottom. Say these are steps and waterfalls. So water has to fall from top to the bottom, right? It will go from the top, water comes from top, it goes down, it goes down. Can water go back? No, water can't go back. This is the problem with this model actually, that water can't go back. So this model can't go back. As you could see, on a lighter note, let me clear this. Close it. If you could see, here is the guy, say this is Mehraj Deen, and he jumped. Now he jumped, and he is trying to balance and see what is going on, what should I do? And then he grabbed what? He grabbed the boat on which he can go on this water. Magrem is gay khur coding was, you go bond. Now the thing is that here is the testing. In the testing, he saw there are some errors. For example, here, this diagram actually is not a good diagram. We should have a different diagram. Say, for example, he was on this skateboard. So he's on a skateboard. He's trying to go on a skateboard, and he discovered while doing the coding and testing, he found there is some error. Okay, there is some error. So there was a glitch, and this skateboard broke into the two. The thing is that I should have foreseen this. That is important. The point here is the glitches which can come later, it should be foreseen. The design should be such which foresee these issues which may come later on. But in a waterfall model, we may not be able to see them right now, because we move on to the first step. We are done with the first step, we move to the next step. When we are done with this step, we move to the next step, and so on. We can't go back. Neither they are overlapping. They are not overlapping. This design phase is completely over, then we start coding phase. So requirement analysis, design, coding, and testing, as you could see, it will go like this. So if I ask you a question, because you are saying you have done when will be the waterfall model used? Can anyone tell me? When will be waterfall model used? Because we have the next, the prototyping model. And if we have waterfall model, then why we need prototype model? And when is waterfall model used, and when is prototype model used? Can anyone tell me? Anyone?
जिसमें हम शॉर्ट सॉफ्टवेयर्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे, जो मतलब विद इन नो टाइम कंप्लीट हो जाते हैं, और उसमें मतलब कंप्लीट रिक्वायरमेंट हमें दी हुई होती हैं, जिसमें एरर्स के चांसेस बहुत कम है। Very good. Basic thing is waterfall model will be used when the requirements are well understood. क्योंकि जो ये requirements आपको well understood है यहाँ पे इस phase में, then you go to the analysis phase. लेकिन होता क्या है असल में, अगर हम देखेंगे जो हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं कि requirements खुद बंदे को पता नहीं। जैसे आप कोई भी चीज पे काम, मैंने कहा आप मकान बना रहे हो, आप जब मकान बनाना चाहते हो आप कहते हो मैं पैसे आ गए मैं मकान बनाऊंगा। रिक्वायरमेंट आपकी क्या है, आप हो ना कस्टमर जिसको मकान बनाना है, उसको खुद नहीं पता कि मुझे बनाना क्या है। अब फिर क्या होता है जब उसके साथ वो इंजीनियर के साथ बैठता है, वो आर्किटेक्ट के साथ बैठता है, सु बेहवान दसिल छ यिवान तमिस निश बेहवान पछ तमिस वनान दसिल ए आजकल ये डिजाइन आसान, आजकल हमें बजान दिमाग की बत्ती दपान ओ ये यथ आसान कर ठीक है। नाउ व्हाइल डिस्कसिंग विद द एक्सपर्ट्स he understands what he needs, what he wants, ठीक है ना। तो एक ये वन वे नहीं होना चाहिए। we should have what, we should have iterative kind of a model which will come back to me. ऐसा नहीं है कि मेरी रिक्वायरमेंट्स मैंने दे दी कि ये बनाना है, बाद में मुझे पता चला कि मुझे खुद नहीं पता थी कि क्या बनाना है, ठीक है ना। क्या फीचर्स हो सकते हैं क्या नहीं हो सकता है मुझे खुद नहीं पता एज ए कस्टमर। तो इसलिए एक मैकेनिज्म होना चाहिए कि आप आगे जाके मेरे पास वापस आ रहे हैं। इसमें और प्रोटोटाइप में क्या फर्क है? प्रोटोटाइप मॉडल में आप प्रोटोटाइप बनाते हो, एक चीज बनाते हो, आप कस्टमर को वापस देते हो, क्या असली नहीं बनाते हो। क्योंकि असली बिल्डिंग अगर आप बनाओगे, जैसे ये मकान की बात हम करेंगे, असली बिल्डिंग अगर आप बनाओगे उसके बाद कस्टमर को दोगे तो फिर क्या फायदा है, वो तो खराब हो जाएगी बिल्डिंग। ही मे नॉट रिक्वायर दैट। You will make a demo, okay, and give it to the customer. And customer उसको हम प्रोटोटाइप बोलेंगे उस चीज को। And customer will see that कि भाई साहब क्या अब ठीक है, अब उसकी दिमाग की बड़ी चलेगी, ओह मैंने तो ये गलत बोला था, ऐसे नहीं करना था, ऐसे ही करना था, ये नहीं चाहिए था मुझे, ये चाहिए था। फिर ऐसे ही हम 2-3 बार आइटरेटिव तरीके में उसको बना के देंगे, रिफाइन करके देंगे। चाहे हम थ्रो अवे प्रोटोटाइप करेंगे, प्रोटोटाइपिंग की भी बहुत सारी किस्में हैं। जैसे थ्रो अवे प्रोटोटाइप है, उसमें हम प्रोटोटाइप थ्रो करते हैं, नया बनाते हैं। एक होता है आइटरेटिव या एवोल्यूशनरी ईपी, एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइप होता है, उसमें हम रिफाइन करते हैं अपनी प्रोटोटाइप को। यानी कि हम कस्टमर के पास वापस आते हैं, फिर से एनालिसिस करते हैं, फिर पता चलता है कि नहीं ये चीजें नहीं थी, ये चीजें करना था, ये कलर ठीक नहीं है, वो यहाँ पे है, बटन ऐसे नहीं होने चाहिए, बटन वैसे होनी चाहिए, एंड ऑल दैट कम बैक। लेकिन जो वाटरफॉल मॉडल आपका है ये ऐसा नहीं है, इसमें वापस आने की गुंजाइश नहीं है। अंजुम समझ में आ रही बात? तो ये उस प्रोजेक्ट में नहीं चलेगा जहां आपको रिक्वायरमेंट पक्के तरीके से पता नहीं है, क्योंकि आप वापस आके उसको रिफाइन नहीं कर सकते हो अब कि आपको क्या चाहिए होगा। आपको एग्जैक्टली बताना पड़ेगा इस स्टेज में कि मेरी क्या रिक्वायरमेंट्स है, व्हाट रिक्वायरमेंट्स आई हैव, एंड आई हैव टू स्पेसिफाई देम एग्जैक्टली, प्रिसाइसली। क्योंकि मेरे पास दूसरा चांस नहीं मिलेगा कि आप वापस आके बंदे आएंगे मुझे पूछेंगे कि सर ये ठीक है, मैं कहूंगा नहीं मेरे से गलती हो गई, ऐसा नहीं करना था, ऐसा करना था, मुझे अब आइडिया आ गया ये बेटर फीचर है, अब मुझे आ गया ये टेक्नोलॉजी ठीक है, अब मुझे पता चला कि ये चीजें ऐसी करनी चाहिए, तो अब उसको इसमें ये चीजें ऐड करो, ठीक है। लेकिन वाटरफॉल मॉडल में आपको ये मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। वाटरफॉल मॉडल में आपको एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट्स बोलनी पड़ेंगी पहले ही, और आपको पता होनी चाहिए रिक्वायरमेंट्स। अगर आपको रिक्वायरमेंट्स पता नहीं है तो जनाब आप वाटरफॉल मॉडल फजूल है आपके लिए। और ये पहला था, कदीम था, ये पहला वाटरफॉल मॉडल जो था वो पहला पैराडियम था, स्टार्ट में ये शुरू हो गया एज एन अल्टरनेटिव टू द एसडीएलसी। जो एसडीएलसी को जो हमने इंप्रूव करना था वो हमने कहा कि भाई वाटरफॉल मॉडल करेंगे। ये मोस्ट बेसिक है, ये सीक्वेंशियल है। सीक्वेंशियल मींस एक खत्म हो गया उसके बाद दूसरा, ये फ्लो करता है ऊपर से नीचे तक लाइक अ वाटर, ठीक है। सो सीक्वेंशियल अप्रोच है, ईच फेज मस्ट बी कंप्लीटेड, टोटल कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद ही नेक्स्ट फेज में जाएंगे। लेकिन इसमें वो सारी प्रॉब्लम्स होंगी,
क्यों? क्योंकि अगर आपके पास रिक्वायरमेंट पूरी तरह पता नहीं है और आप चले डिजाइन करने, वापस तो नहीं आ सकते। इसमें आइटरेटिव में और प्रोग्रामिंग में क्या फर्क है? आप वापस आ सकते हो, आपने फाइनल नहीं बनाया। यहाँ पे रिक्वायरमेंट हो जाएंगी फिनिश, उसके बाद डिजाइन पे जाओगे, डिजाइन हो गया फिनिश, उसके बाद नेक्स्ट होगे सीक्वेंशियल मॉडल है, वापस आने की गुंजाइश नहीं है। ये इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री है, मैं ये आप पढ़ेंगे बाद में। सो इसलिए इसमें क्या, ये आप कब इस्तेमाल करोगे? व्हेन द रिक्वायरमेंट्स आर वेरी वेल नोन, दे शुड बी क्लियर, दे शुड बी फिक्स्ड, इसमें कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए। प्रोडक्ट की डेफिनेशन स्टेबल होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी कौन सी इस्तेमाल करनी है, दैट शुड बी अंडरस्टूड। बाद में ये नहीं बोल सकते कि सर अब टेक्नोलॉजी आजकल ये नहीं चलता, आजकल वो दूसरी टेक्नोलॉजी है। हम अटेंडेंस की बात कर रहे हैं, हमने ये बायोमेट्रिक्स का लाया, फिर आप कहते हो नहीं मुझे आइरिस स्कैन वाला चाहिए, वो नहीं चलेगा। टेक्नोलॉजी हैज टू बी अंडरस्टूड अपफ्रंट, पहले ही, what technology you are using in your project. Okay, there are no ambiguous requirements and the project is short. Definitely the project is short. जब प्रोजेक्ट बड़ा होता है तो उसमें एम्बिग्यूटी होती है, रिक्वायरमेंट्स का पूरा पता नहीं होता। अगर प्रोजेक्ट बड़े होंगे, प्रोजेक्ट बड़े के मतलब है उसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, उसमें आपको पूरी तरह नहीं पता कि रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो उसमें वाटरफॉल मॉडल जो है, इट्स that will be a crime to do waterfall model in the big project, right? because that will doom to die, that project, if you apply waterfall model to the big projects. Do you understand? So waterfall model has to be done for the very short projects, जहां पे, और short project भी वो ऐसे जिनमें requirements 100% clear है, कोई doubt नहीं है। why so? why हम इसमें क्यों हमें requirement जरूरी है? बताओ जल्दी, शाबाश, discuss this thing. बिकॉज अगर उसमें एरर आएगा वी कांट बैक ट्रैक। यस, एरर नहीं, मतलब इट्स नॉट ए कोडिंग काइंड ऑफ थिंग, रिक्वायरमेंट्स की बात कर रहे हैं हम, एरर की बात नहीं कर रहे अभी, वो रिक्वायरमेंट की बात कर रहे हैं। रिक्वायरमेट का मतलब है जो आप बनाना चाहते हो, व्हाटएवर यू वांट टू डेवलप एंड यू डोंट हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट। यस, हाँ बोलो। सडनली अगर कस्टमर कुछ जरूरत पड़ा तो ऑब्वियसली किसी प्लेस पे हम वो ऐड नहीं कर पाएंगे। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, आई कांट हियर इट प्रॉपर्ली। यस, व्हाट वी आर सेइंग इज कि अगर रिक्वायरमेंट्स नहीं पता पूरे से, यू विल नॉट गेट अ सेकंड चांस। सो जो प्रोजेक्ट बनने वाला है वो तो खराब ही बनने वाला है ना, क्योंकि रिक्वायरमेंट फेज के बाद डिजाइन में चला जाएगा ये, और डिजाइन बनाएगा उसी चीज का जो रिक्वायरमेंट ने दी। और रिक्वायरमेंट में अगर आपको एम्बिग्यूटी है, आपको कंफ्यूजन है, आपको नहीं पता पूरा कि रिक्वायरमेंट क्या है, तो डिजाइन भी उसी हिसाब का बनेगा, फिर कोडिंग भी उसी हिसाब की होगी, तो सॉफ्टवेयर भी उसी हिसाब का बनेगा। और लास्ट में आप जो सॉफ्टवेयर आएगा बन के, मैं पूरी मेहनत करके, फिर आप बोलोगे ये तो फजूल है, ये तो हमें चाहिए नहीं था। ठीक है, हमें कुछ और ही फंक्शनैलिटी उस, या इसमें वो फंक्शनैलिटीज है ही नहीं जो हमें चाहिए थी। क्योंकि एक जो कंपनी है जिसके लिए आप सॉफ्टवेयर बनाते हो, एक ऑर्गेनाइजेशन जिसके आप सॉफ्टवेयर बनाते हो, उनको भी नहीं पूरा पता रहता है कि जो करंट सिस्टम उनका होता है कि हमें क्या मिलने वाला है, हम क्या करना चाहते हैं। रिक्वायरमेंट्स आर नॉट वेल डिफाइंड मैक्सिमम टाइम, so that is why you need to iterate, will come back. You cannot stay in a waterfall model, because waterfall में क्या है, flow एक बार हो गया, you can't come back. Does it make sense? फैसल नजीर, आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सिंपल, समझ आ गया आपको? समीना जाफर, आपको समझ आ गया बेटा? Yes, sir. So when should we go for prototype model or when should we go for the waterfall model? Can you tell me? तो जब हमारी रिक्वायरमेंट फिक्स्ड हो, ये क्लियर हो, तब हम जा सकते हैं वाटरफॉल ये इसके लिए। एंड जो वो होता है उसके लिए जरूरी नहीं ये होता है कि उसके लिए हम सारी रिक्वायरमेंट्स और ये होगी क्लियर होंगी प्रोटोटाइप मॉडल के लिए। मैं समीना जाफर को जब भी बोलता हूँ फिर अंजुम आंसर देती है। आप लोगों को कुछ ये मत पैक्ट वैक्ट चलता है कुछ आपस में किया है कुछ? प्रोटोटाइप मॉडल हम उस टाइम यूज करते हैं जब कस्टमर क्लियर, मतलब जब कस्टमर को ये क्लैरिटी नहीं होगी मुझे चाहिए क्या रिक्वायरमेंट्स। लाइक फॉर इंस्टेंस अगर हम किसी फोन शॉप पर जाते हैं, वो हमें एक डेमो प्रोवाइड करता है, वहां पर एक फोन का डेमो,
तो उसी डेमो के हिसाब से हम उसमें ये स्पेसिफिकेशन जान लेते हैं कि फोन में क्या क्या होगा। तो ऑब्वियसली जब सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पास हम जाते हैं, वो हमें एक प्रोटोटाइप देता है, एक नमूना देता है सॉफ्टवेयर का, आपका सॉफ्टवेयर ऐसा होना चाहिए। तो उसमें कस्टमर थोड़ा बहुत वेल नॉलेजेबल होता है कि मुझे एक्चुअली चाहिए क्या। एग्जैक्टली लेकिन पूरी क्रूड एग्जांपल थी, लेकिन बेसिकली जो प्रोटोटाइप बनेगा वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं देगा उसको, वो उसी का जो कस्टमर ने बोला उसी का बना के देंगे। जब एनालिसिस हमारी होगी, जब हमारी एनालिसिस होगी, जो यूजर बोलेगा उसी का हम प्रोटोटाइप बनाएंगे। नाउ दैट प्रोटोटाइप कैन बी ऑन अ पेपर, sometimes it can be kind of an interface without database, without that's also a prototype। कि हम एक, जैसे हमें पूरा सॉफ्टवेयर बनाना है, हम उसकी एक डेमो, उसका उसका इंटरफेस खाली बनाएंगे यूजिंग कोडिंग ऑल्सो, लेकिन इंटरफेस खाली बनाएंगे, बटन्स वगैरह बनाएंगे एंड ऑल, फंक्शनैलिटी नहीं डालेंगे उसमें, क्लिक करके क्या हो रहा है, फिर वो कहाँ से जा रहा है, वो पूरा नहीं करेंगे, डेटाबेस नहीं बनाएंगे, बाकी चीजें नहीं बनाएंगे, सिर्फ इंटरफेस बनाएंगे, फिर यूजर को देंगे। यूजर में भी ही विल से कि भाई साहब यहाँ पे जो आपने ये ड्रॉप डाउन बॉक्स रखा है, इसमें ये चीजें मेरे को यहाँ पे एग्जामिनेशन का पूरी डिटेल आनी चाहिए, मुझे नहीं यहाँ पे मुझे ऐसा आना चाहिए, ठीक है। तो वो डेमो जब उसको देंगे हम, किसको, यूजर को, वो फिर एडिशनल रिक्वायरमेंट्स, इसे कहते हैं एलिसिटेशन ऑफ डेटा, हम एलिसिट करते हैं, उसमें से चीजें निकालते हैं कि उस बंदे को चाहिए क्या होगा। कुछ नेटवर्क इशू आ गया था, ये खुद ही भाग गया स्क्रीन में। Okay, now in a waterfall model we have what's the requirements क्या करेंगे, defines the needed information, function क्या चाहिए, behavior क्या चाहिए, performance, interface, वो सारे इसमें आ जाएंगे। उसके बाद हम डिजाइन बनाएंगे इसका, यानी कि डेटा स्ट्रक्चर कैसा होगा, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर कैसा होगा, इंटरफेस जो हम बनाएंगे उसका, जैसे वेबसाइट है तो उसके इंटरफेस क्या होंगे, बटन्स क्या होंगे, उसमें क्या क्या चीजें होंगे। ओके, एल्गोरिथमिक डिटेल्स, हम कौन कौन से एल्गोरिथम लगाएंगे उसके अंदर, वो सारी चीजें जो है डिजाइन में आ जाएंगी। उसके बाद हम इम्प्लीमेंटेशन पे जाएंगे, ठीक है। और इम्प्लीमेंटेशन में क्या होगा कि आप सोर्स कोड, यू विल स्टार्ट कोडिंग, आप डेटाबेस बनाना शुरू करोगे, यूजर डॉक्यूमेंटेशन करोगे, उसके बाद आप टेस्टिंग करोगे, ठीक है। और टेस्टिंग के बाद इंस्टॉलेशन होगी और उसके बाद मेंटेनेंस, यानी कि टेस्टिंग किया, टेस्टिंग में निकला यूनिट टेस्ट, बाकी टेस्ट वगैरह सब टेस्ट ठीक हो गए, उसके बाद आप उसको इंस्टॉल करोगे, ठीक है। माय इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल, ही इज सेइंग, इज माय वॉइस कमिंग? जी सर। हाँ, ये पिक्चर में असल में कह रहा था। दिस इज द waterfall model. How do we chart our entire course if we do not know what is ahead? This is the thing you have to keep in mind, क्योंकि जो प्लान आप कर रहे हो आपको पूरा पता ही नहीं आगे क्या होने वाला है, ठीक है, और आप चले हो नाव में, ठीक है। whatever happens just keep paddling, कुछ भी हो जाए हमें आगे चलना है, क्योंकि वाटरफॉल मॉडल में वापस आ नहीं सकते। अब इस फेज में ओके, ये यहाँ पे बोल रहा है कि आई विश वी वुड हैव डिजाइन फॉर दिस सिनेरियो अपफ्रंट, कि ये सिनेरियो जो है यहाँ पे, जहाँ के बोर्ड के दो टुकड़े हो गए, ये सिनेरियो हमने देखा नहीं। मैं कह रहा हूँ आपको कि 4C, यू हैव टू 4C, लेकिन जो इसमें नहीं कर पा रहे हम, क्योंकि इसमें जो चीजें हैं, हमारा रिक्वायरमेंट पहले ही बोलते हैं, उसके बाद आगे जाते हैं, आगे का पता नहीं पूरा, आगे कुछ ऐसी भी चीजें हो सकती हैं जिसमें बोर्ड के जैसे हमें दो टुकड़े हो गए, लेकिन हमें क्या करना है वाटरफॉल मॉडल में, हम पैच मारेंगे, यानी कि बोर्ड का जो आधा टुकड़ा है उसी पे चल के आगे जाएंगे, यानी कि पैच मार के आगे जाते हैं। अब इसकी स्ट्रेंथ क्या है, आपके वाटरफॉल मॉडल की स्ट्रेंथ क्या है, ये इजी होता है अंडरस्टैंड करने के लिए। एक स्ट्रक्चर आपके पास है, जो इन एक्सपीरियंस स्टाफ अगर भी होगा तो वो भी इस पे काम कर सकते हैं। माइलस्टोन सीधे पता है कि हमें ये करना है, उसके बाद आगे जाना है, उसके बाद ये करना है, कि तो एक स्टेबिलिटी होती है इसके अंदर, ठीक है। कंट्रोल होता है, सिंपल कंट्रोल, क्योंकि आपको वापस नहीं आना, फिर पता नहीं चलेगा आपको प्रोटोटाइपिंग में आपको एक्सपर्ट चाहिए होते हैं, यहाँ पे उतने एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है, ओके। तो इसमें कॉस्ट और स्केड्यूल उसकी परवाह नहीं होती, हमें क्वालिटी पे ज्यादा ये रखते हैं इसमें वाटरफॉल मॉडल में। लेकिन डिफिशिएंसी क्या है इसकी, कि सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स आपको पता होनी चाहिए पहले ही अपफ्रंट, और जो डिलीवरेबल्स आएंगे वो फ्रोजन होते हैं,
फ्रोजन का मतलब होता है कि उनमें उनमें फिर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, यू कैन नॉट चेंज देम लेटर ऑन, ठीक है ना। जो भी रिक्वायरमेंट्स में आ गया वो फ्रीज हो गया, जो उसका डॉक्यूमेंट आ गया उसके बाद दैट इज फ्रोजन. व्हाई? बिकॉज आई कैन नॉट चेंज इट नाउ, इट गो टू द डिजाइन फेज, वी कैन नॉट चेंज दैट. डिजाइन बन गया, वी कैन नॉट कम बैक एंड चेंज द डिजाइन, दे आर फ्रोजन. यू अंडरस्टैंड? तो इसमें से एक फॉल्स इंप्रेशन भी आ सकती है प्रोग्रेस की. सो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, जो कि जिसमें आइटरेशन ऑफ फेजेस होता है कि फेजेस आप वापस जाओगे फिर से रिफाइन करोगे, वापस जाओगे फिर से रिफाइन करोगे, वो चीजें इसमें नहीं होती हैं. और इसमें कोई अपॉर्चुनिटी या लिटिल अपॉर्चुनिटी होती है कि यूजर अपने प्रोजेक्ट को प्रूव कर सके कि मेरा प्रोजेक्ट है कैसा. समझ में आ रही है? और यू गाइस गेटिंग? इजी है ना, आपको पता भी है ये चीजें. तो वाटरफॉल मॉडल कब इस्तेमाल करना चाहिए? हाँ जी, बता रहा है, पढ़ के बता सकते हो. जब रिक्वायरमेंट्स वेल नोन होंगी, प्रोडक्ट डेफिनेशन स्टेबल होगी, टेक्नोलॉजी अंडरस्टूड, न्यू वर्जन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट. जैसे आप कभी ये भी होता है कि आपको ऑलरेडी एक प्रोडक्ट है, ठीक है, अब इसको आप अपडेट करना चाहते हो, तो यू ऑलरेडी हैव ऑल द रिक्वायरमेंट्स, यू नो अबाउट द सिस्टम, सारी चीजें आपको पता है, आपको थोड़ा सा इसको अपडेट करना है. तो इसमें वाटरफॉल मॉडल अच्छे से लगेगा, क्योंकि रिक्वायरमेंट्स हमें ऑलरेडी पता है, वेल डिफाइंड है. क्योंकि जो अब हम से 5 ईयर से कोई सिस्टम चला रहे हैं, हमें ऑलरेडी पता है इसमें क्या क्या डिफिशिएंसीज है, इसमें क्या क्या होना चाहिए. द रिक्वायरमेंट्स इन दीज 5 years वी हैव अंडरस्टूड प्रॉपर्ली, क्योंकि हमारे पास सिस्टम है. अब हम सिर्फ ये एडिशनल फीचर्स इसमें डालना चाहते हैं. सो दैट मीन रिक्वायरमेंट्स आर क्लियर, देयर आर नो एम्बिग्यूटीज. सो इन दिस केस वी कैन गो अहेड एंड यूज द वाटरफॉल मॉडल. ठीक है, या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को न्यू प्लेटफॉर्म पे लगाना चाहते हैं, एंड सो ऑन. फिर एक और मॉडल आता है, कहते हैं वी शेप्ड एसडीएलसी मॉडल, जिसमें पैरेलल चीजें होती हैं. वी शेप है, एक साइड आपका, आप देखोगे कि ये वेरिएंट है वाटरफॉल का, लेकिन इसमें पैरेलल चीजें चलती हैं. जैसे यहाँ प्रोजेक्ट एंड रिक्वायरमेंट प्लानिंग हो रही है, एक सेकेंड, और साथ में प्रोडक्शन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस भी साथ में हो रहा है. यहाँ प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन एनालिसिस हो रहा है, यहाँ सिस्टम एंड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग भी हो रही है साथ में. आर्किटेक्चर हाई लेवल डिजाइन हो रहा है, यहाँ इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग भी हो रही है साथ में. डिटेल डिजाइन हो रहा है, यहाँ यूनिट टेस्टिंग हो रही है, और कोडिंग उसके बाद. यानी कि आप साथ साथ में ये चीजें करते हो. इट्स कॉल्ड वी शेप्ड एसडीएलसी मॉडल. ओके, these are the steps, and this is not in a syllabus, so I will just leave it. So this is prototyping. Now prototyping model, the basic steps. Now prototyping model is a one kind of an iterative model, right? Okay, iterative का मतलब क्या होता है? When you come back and forth, you understood that why we should come back and forth. So you identify basic requirements. जो आपकी basic requirements है, you identify them, you try to identify them. Input, output information जो भी होगी इसमें, सिक्योरिटी, जनरल डिटेल्स, जनरली जो सिक्योरिटी की जैसे चीजें हैं कि उनको हम इग्नोर करते हैं फिलहाल, क्योंकि बिकॉज वी वांट टू कम बैक टू इट. और उसके बाद जो हम पहला आइटरेशन मारते हैं, जिसमें हम वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट यूजर वांट्स टू बिल्ड, एंड देन वी स्टार्ट बिल्डिंग इट. वी डेवलप इनिशियल प्रोटोटाइप. ओके, so what is this UI? UI means user interface. We create a user interface. Either we create a user interface, sometimes we create only on a paper. We do the paperwork. We create the system on a paper and show it to the customer कि भाई साहब क्या ये ठीक है? वो कहता है नहीं ये ठीक नहीं है, इसमें ऐसे करें, इसमें वैसे करें, है ना. आप कोई भी चीज करोगे, ठीक है, जैसे आपको एक कपड़े सिलाने हैं, फिर अगर वो कपड़े सिलाने के आएगा, उसको बोलेगा, फिर आप बोलोगे नहीं मुझे ये डिजाइन चाहिए था, मुझे ऐसा चाहिए था, नहीं यहाँ पे ऐसा चाहिए था, वहां पे वैसा चाहिए था. ठीक है, ये स्लीव्स थोड़े टाइट होने चाहिए, ये थोड़ा लूज होना चाहिए, ये थोड़ा लंबा होना चाहिए, वगैरह वगैरह. तो अकॉर्डिंगली यू कैन कस्टमाइज. you are able to customize when you have a preview of UI, user interface, so that you can review. Okay, you identify the basic requirements, you develop the initial prototype, then you review. The customers and pay user review and give feedbacks. You review this product, this demo, and give your feedback. Then revise and enhance the prototype and specifications. फिर हम इस
प्रोटोटाइप को रिवाइज करेंगे, एनहेंस करेंगे, वो फीचर जो यूजर ने बोले वो ऐड करेंगे। उसके बाद फिर से हम नेगोशिएशन करेंगे इस कस्टमर से कि भाई साहब आपको और तो चेंजेस नहीं चाहिए, इन सम आइटरेटिव मैनर, ठीक है। और अब इसमें जो डायमेंशन ऑफ प्रोटोटाइपिंग है, इसमें हॉरिजॉन्टल प्रोटोटाइप हो सकता है, इसमें वर्टिकल प्रोटोटाइप हो सकता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। वी हैव लेस टाइम लेफ्ट एंड आई जस्ट वांट टू talk with the students now in these few minutes left, ठीक है ना। हाँ, हमारे पास बहुत कम स्टूडेंट है। What is the reason? We have only few students here. How many students are here? इमन क्या दलील है? We have 11 students here only. शॉर्टेज निकलेगी फिर कुछ मैं कर नहीं पाऊंगा ना, याद रखना आप लोग। शॉर्टेज जिसकी बंदे की निकलेगी उसका कुछ होगा नहीं फिर भला। कीप दैट थिंग इन माइंड, ठीक है। हाँ, Atera, you talk about. I would really like that you talk about the prototyping and the waterfall model, whatever we have learned right now. Atera. Yes, sir. Yes. Talk about the prototype and the models we were talking about, na? सर वॉइस ब्रेक हो रही है। वॉइस तो ब्रेक होगी। मैं कह रहा हूँ जो प्रोटोटाइपिंग मॉडल और जो हमारा ये है ना दिस वन, क्या बोलते हैं इसको, प्रोटोटाइपिंग एंड वाटरफॉल मॉडल, इसके बारे में थोड़ी सी बात करो आप। Talk about these two models quickly on screen. हाँ बोलो जल्दी। Yes, Atera, I am waiting for you. जो प्रोटोटाइपिंग मॉडल है ना, और जो आपका हमने बताया वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल कहाँ लगेगा, उसकी ड्रॉबैक्स क्या है, और प्रोटोटाइप मॉडल में क्यों बेहतरी है देन द वाटरफॉल मॉडल। कैन यू, आवाज नहीं आ रही है? आई थिंक Atera is not able to hear. Can any Nisa can tell us? उर्दू में ही बताओ, कोई मसला नहीं है। कौन बताएगा? वॉलंटियर्स। आई वांट वॉलंटियर्स। मैं इसको एक्सपैंड करूंगा पहले वीडियो विंडो को। वी हैव फ्यू मिनट्स लेफ्ट, जल्दी बताओ। I want volunteers who will speak up. Yes. हम कब प्रोटोटाइप मॉडल इस्तेमाल करते हैं और कब वाटरफॉल मॉडल इस्तेमाल करते हैं, जो सिंपल है बताया, अभी तक बताया मैंने, आधे घंटे से मैं बता रहा हूँ। समीना आप बोलो। जी सर, वाटरफॉल मॉडल तब यूज करते हैं जब हमारे पास सारी रिक्वायरमेंट्स होंगी, क्योंकि हम तब तक दूसरे स्टेप पे नहीं जा सकते जब वेरी तक हम गुड, पहले कंप्लीट न करें। इसीलिए सारे जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो हमें पहले ही पता होनी चाहिए। एग्जैक्टली, वेरी गुड। हाँ, प्रोटोटाइपिंग। आते आप सुनो ये क्या बोल रही है। हाँ शाबाश, शाबाश समीना, बोलो। हाँ ठीक है, यू राइट। जी, प्रोटोटाइपिंग में हमें ये भी हो सकता है, अगर हमें कहीं पे चेंज लानी पड़े या कुछ, तो हम उसमें रिवर्स जा सकते हैं। जो हमारा ड्रॉबैक वो वाटरफॉल मॉडल का है, हाँ कि उसमें हम ये चीजें नहीं कर सकते हैं। एग्जैक्टली। तो प्रोटोटाइप मॉडल में क्या होता है कि आप वापस आते हो और यूजर को एक क्या देते हो, यूजर को उसको एक आप डमी देते हो, है ना। रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी उसमें हम कहते हैं फर्स्ट प्रोटोटाइप देते हो, प्रोटोटाइप बना के देते हो। दैट प्रोटोटाइप इज जस्ट अ डमी, इट कुड बी पेपर वर्क, इट कुड बी सॉफ्टवेयर ओनली इंटरफेस, नॉट हैविंग डेटाबेसेस और वो सारी अकॉर्डिंगली चीजें। उसमें चेंज किया। Accordingly he will think about it and he will make changes about it and so on, ठीक है ना। So hope we got these two projects today. These two sir voice नहीं आ रही है, break हो रहा है। Okay, I got it, don't worry,
I will upload these videos all on the YouTube. Just try to watch. This is very simple, right? So I think that's all for today. And see you guys, inshallah ta'ala, tomorrow. Okay? Allah Hafiz.